نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. So Baqarah, ayat number 272. Bismillahir Rahmanir Rahim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى عليكم وأنتم لا تظلمون. ترجمہ: لئیسا نہیں ہے علیہ کا آپ پر ہداہم ہدایت دینا انہیں، ولیکن اور لیکن اللہ اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وما اور جو تم تنفقو تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے فلانفسکم تو تمہارے نفسوں کے لیے، وما اور نہیں تنفقون تم خرچ کرتے الا ابتغاء وجہ اللہ مگر صرف اللہ تعالیٰ کی رضاحت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے یوفو وہ پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہیں وانتم اور تم لا تظلمون نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ صدقات کے پیچھے سارا ذکر تھا، صدقات کے بعد یہاں پر ہدایت کی بات اس لیے کی گئی کہ اگر کوئی تفصیل سے بات بتائے پھر بھی کوئی نہ مانے تو پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے ذمہ صرف اور صرف اگلے تک پہنچا دینا ہے۔ یہ بالکل اس طرح سے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھا، اس قرآن نے ہم تک پہنچایا اور ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ہم صدقات کا ذکر آیا، ہم نے اگر جس چیک کہ 2-3 دن جو ہے وہ صدقات کے آیات چلی تھی، کیا چیز ہم نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کیا، قربان کیا، کیا چیز تھی وہ نہیں کی، تو یہ آیت پھر ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہیں کو ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ کیا مطلب اتنے دن بھی موٹیویٹ اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دیتا رہے اس آیات میں کہ صدقات کی یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے، مگر پھر بھی ہم لوگوں نے اس کی ہیبٹ کو اپنی ڈیلی روٹین میں نہیں لے کر آئے۔ جیسے کہا تھا کہ کوئی صدقہ باکس بنا لے کہ روز کا 5-10 روپیز ہو جائے تو 5-10 روپیز ہو جائے تو وہ آپ کی کنٹینیوٹی میں لکھا جاتا ہے، ایک مستقل مزاجی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ تھوڑا تھوڑا مگر روز کوئی ہیبٹ اپنے اندر مستقل مزاجی کی لکھ کر آئے۔ پھر آگے آتا ہے للفقراء فقراء کے لیے ہے الذین وہ جو ارسلوا گھیر لیے گئے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے ضربن چلنے پھرنے کی فی الارض زمین میں، یحسبہم سمجھتا ہے انہیں الجاہل جاہل اغنیاء مالدار من التعفف بچنے کی وجہ سے سوال، تعریفہم تم پہچان لوگے انہیں بسیماہم ان کے چہروں کی علامت سے، لا یسألون نہیں وہ مانگتے الناس لوگوں سے الحافا لپٹ کر، وما اور نہ تنفقو تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی سے علیم خوب جاننے والا ہے۔ اچھا یہاں پہ نا احسرو حصار دین اسلام کا کام کرتے ہوئے اس میں گھیر لیے گئے، احسرو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی دین میں گھیر لیے گئے۔ پھر عفت نا اسے کہتے ہیں جو اونٹنی کا دودھ اس کے ٹہنوں میں بچ جاتا ہے، ٹہنوں میں، تو اصل میں یہاں پر پس منظر اس کا یہ ہے کہ اصحاب صفا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم میں مشغول ہوتے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال عام ہے جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے،
ان کو اس بات کی قدر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہیں رہنے والے، تو ان کی بات کوئی ایسا علم نہیں سکھا سکتا۔ انہوں نے 4 سال میں ایسا علم سیکھا جو ساری زندگی نے کوئی نہیں سیکھ سکتا۔ جب تک 100% کسی چیز میں انوالومنٹ نہیں نہ ہوتی تو اس کو بہتر طور پہ جان بھی نہیں سکتے۔ کسی بھی چیز کی حکمت کو جاننے کے لیے پوری طرح اس میں انوالو ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے لوگوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ علم بھی حاصل کرتے تھے اور جنگ کے لیے بھی اٹھ جاتے تھے، مگر ان کے لیے کوئی وظیفہ نہیں تھا ہوتا۔ ان پر خرچ کرنے کی طرف توجہ دی گئی کیونکہ یہ کماتے نہیں ہیں، ان کو دنیا صدقہ جاریہ ان کو دینا صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے... اچھا، یہاں پر ذکر ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے، دین کی تعلیم کے لیے جنگوں میں جاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے پہلے ایسا کوئی قانون تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ ان لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ لیکن اچھا، ان کے بارے میں نا یہاں لکھا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی ہم لوگ جو جاہل لوگ ہیں نا سمجھتے ہیں ان کو مالدار، مگر اصل میں ان کے چہرے کی علامت سے سمجھ جائیں گے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں لپٹ کر، کیونکہ وہ ایک سفید پوش کے جیسے ہوتے ہیں نا، بالکل ویسے۔ اور کیا ہوا؟ اوہو، نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، بے فکر ہے۔ ہاں ہاں، تو اس میں اس واقعے کی طرف ذکر ہے اور ان پر خرچ کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ اصل میں وہ کسی کے آگے پھیلاتے نہیں ہاتھ نہیں تھا پھیلاتے، اس لیے لوگ ان کو غنی سمجھتے تھے، ان میں پاک دامی اور خودداری تھی جس کی وجہ سے وہ مانگتے نہیں تھے لپٹ کر۔ الحافن ہے نا یہاں پہ لکھا ہوا، لپٹ کر نہیں مانگتے تھے جیسے آج کل جو مانگتے ہیں لپٹ کر۔ پھر الذین وہ لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں مالوں اپنے مالوں کو باللیل رات کو والنہار اور دن، سرن چھپا کر، وعلانیۃ اور علانیہ طور پر، فلہم تو ان کے لیے اجرہم اجر ان کا عند پاس ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں پھر سے خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے بار بار، حالانکہ پیچھے اتنا صدقات کا خیرات کا ذکر آیا، اس کے بعد پھر آیا کہ جو ہدایت لینا چاہتے ہیں ان تک ہدایت پہنچ جائے گی اور وہ لے بھی لیں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے خرچ کرنے کا آیا کہ بہت سے سفید پوش لوگ ہیں ان پر بھی فوکس کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے کہ اپنے مال دن رات چھپا کر اعلانیہ طور پر ہر طرح سے، جیسے پیچھے تھا کہ اعلانیہ یہ پیچھے بھی اس طرح کی یہ آیت گزری تھی اس طرح سے کہ اعلانیہ طور پہ بھی کیا جائے تاکہ لوگ اس سے رغبت ہوں، لوگوں کے بھی موٹیویٹ ہو، اور اگر انسان کوئی بھول گیا تو اس کے ریمائنڈر آ جائے کہ اچھا نہیں یار میں نے بھی نہیں دینا ہے، تو یہ اور اس طرح سے دینا بھی آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے، آپ کو دے کے کوئی اور دے، اور خفیہ طور پہ دینا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت افضل ہے کہ آپ اس طرح سے دیں کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اچھا، ابن ثاقب ایک صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت، جنہوں نے 40,000 درہم خرچ کیا، 10,000 صبح، 10,000 شام، 10,000 چھپا کر اور 10,000 دکھا کر خرچ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نا 4 دینار تھے، پھر انہوں نے ایک صبح، ایک شام، ایک چھپا کر اور ایک اعلانیہ خرچ کیا۔ جب ہم دنیا میں کسی کام میں انوالو ہوتے ہیں نا تو کوئی موقع طریقہ نہیں جانے دیتے، نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محمود اور حمید بھی ہے نا نام ان کا، کہ جس کی تعریف کی اور
तारीफ होता है, ना भी कोई तारीफ करे फिर भी वो तारीफ के लायक हो। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा सोसाइटल ट्रेंड इस बन चुके हैं कि गली गली मोहल्लों पे खड़े हैं, मगर खुद मुख्तारी खुददारी खत्म हो चुकी हुई है। एक हदीस का मफहूम है, जो शख्स सवाल से बचे अल्लाह बचाएगा, जो लापरवाही करेगा अल्लाह इसे बेपरवाह कर देगा, और जो सब्र करेगा अल्लाह ताला उसे सब्र देगा। मतलब जो इंसान जिस तरह की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको वैसा कर बना देंगे। तो एक और हदीस में वो है, सवाली जो हमेशा लोगों से मांगता रहता है उसका क्यामत के दिन शक्ल पर एक बोटी भी नहीं होगी। इवन ये आता है कि वो आधे मतलब वो जब आते कब्र से निकाले जाएंगे ना, उनकी सिर्फ ढांचा ढांचा होगा, उनके कोई ऊपर बोन कोई गोश्त वगैरह कोई स्किन कुछ नहीं होगा उनके ऊपर। फिर मिंबर पर सदका और सवाल से बचने के लिए अ, भी कहा गया। और एक हदीस के मफहूम में आता है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, क्योंकि जैसे हम देते हुए ऊपर वाला हाथ देने वाला होता है ना, तो देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। फिर इसके अलावा मांगने वालों को देखकर इनकरेज नहीं करना चाहिए, बल्कि कमाने की नसीहत करना, ऐसा उनका कोई सिस्टम बना दे कि आपका जो दिया हुआ सदका है वो उनके लिए कोई बिजनेस का सोर्स बन जाए, कि वो मजीद मांगे ना। फिर एक मफहूम आता है कि कौन है जो मुझे किसी से ना मांगने की जमानत दे, मैं उससे जन्नत की जमानत दूंगा। यानी वो अपनी दुनिया की कोई बेसिक नेसेसिटी भी किसी से ना मांगे तो अल्लाह ताला उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जमानत दे रहे हैं जन्नत की। तो यानी कि जैसे सहाबा करम कहते हैं ना कि जिंदगी का तस्मा भी होता था वो अल्लाह ताला से मांगते थे, मतलब छोटी से छोटी चीज हर चीज अल्लाह ताला से मांगे तो तो जन्नत की जमानत है उसके लिए। इससे बड़ी और क्या ही खुशखबरी हो सकती है हमारे लिए, कि सिर्फ इतनी सी बात कि हमने किसी से नहीं मांगना, सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना और जन्नत हमारी। और इसके अलावा बुराई से रुक जाना और अच्छाई पर अमल करना भी सदका है। और ऊंटों बकरियों गायें और तजारत के माल पर ज़कात होती है। जैसे सोना और चांदी के बेस पर भी होता है ना, वैसे इन जानवरों के बेस पर भी होती है। इस्लामी मुआशरा एक दूसरे की मदद का रवाज होता है, और वहाँ मुआशरा खौफ से आज़ाद होता है। इसलिए हर तरह से वहाँ पर नेकियों को सदकात को प्रमोट किया जाए और एक दूसरे की हमदर्दी मदद की जाए। फिर नेक्स्ट आयत आती है रिबवा पे, सूद पर। ये कुरान पाक की जो है वो वही वाली आयत है। नहीं वो नहीं है। अ, अच्छा, वो लिखत पढ़त वाली आयत है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आती है आयत कि वो अल्लज़ीना वो लोग याकुलून जो खाते हैं रिबा रिबा सूद ला यक़ूमुना नहीं वो खड़े होंगे इल्ला मगर कमा जैसा कि यक़ूमुना खड़ा होता है लजी वो जो यतखब्बतुहु शैतानु खप्ती बना दिया हो उसे शैतान ने मिनल मस्सी छू कर। ज़ालिका ये बयानहुम बवजह उसके कौलो वो कहते हैं इन्नमा बेशक अलबैउ तजारत मिस्लु मानिंद है रिबा सूद के। वो अहिल्लु हालांकि हलाल किया अल्लाह ने बैअ तजारत को, वो हर्रम रिबा और हराम किया उसने सूद को। फमन तो जो कि जाअहु आ जाए उसके पास माउ इज़्ज़तुन कोई नसीहत में रब्बी उसके रब की तरफ से, फन तहा फिर वो बाज आ जाए, फलाह तो उसके लिए है माँ जो सलाफा पहले हो चुका, व अमर हो मामला उसका है इल्लाह तरफ अल्लाह के। अमर जो कि आधा लौट आए का तो यही लोग असहाबुन नार साथी आग के, हम फीहा खालिदून वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब यहाँ पर सूद की बात हो रही है। रिबा ना दूसरी का अक्सर मतलब है कि दूसरे की जरूरत से फायदा उठाना, यानी हर वो माल जो वापसी के वक्त में नफा खींच कर लाए वो रिबा है। यानी देने के बजाय उसमें लेने की फिक्र करना,
کہ जब किसी को दे रहे हैं ना, तो ज्यादा फिक्र ये होती है, अच्छा ये वापस करेगा तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा, मुझे इतने परसेंट ज्यादा मिलेगा या इतने रुपीज मुझे ज्यादा मिलेगा। और लेना भी उस हालत में कि जब वो तंग दस्त हो, कि मतलब अगला बंदा बहुत टाइट है और उसने कर्ज लिया था, अब कर्ज उसको सूद समेत वापस देना पड़ रहा है, वो और तंग दस्त हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयशुदा फिक्स्ड अजाफा जो असल रकम से ज्यादा लिया जाता उसे रिबा करार दिया था। कि जो आपने फिक्स्ड थी कीमत किसी भी चीज की, उस पर कोई भी एडिशनल अमाउंट परसेंटेज वो रिबा है। कर्ज देने वाला महज मोहल्ले के इवज अपने मकरूज से अपनी असल रकम से ज्यादा वसूल करता है, कि यानी इतने टाइम ड्यूरेशन तक दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो उससे आगे सूद बढ़ता जाएगा। अब आज दफा ये भी तब होता है, इतने टाइम ड्यूरेशन तो दे दोगे तो इतना सा सूद है, जितना आगे बढ़ाते जाओगे सूद बढ़ता चला जाएगा। और फिर ऐसे गरीब लोग जो अक्सर होते हैं ना, ये चौधरी चौधरी वाला सिस्टम होता है, तो जो गरीब होते हैं वो बेचारे एक दफा कर्ज लेके दोबारा फिर कर्ज से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि वो जो रिटर्न कर रहे होते हैं वो उस बेचारा सूद की किस्तें ही चलती रहती है, वो कर्ज वहीं का वहीं रह जाता है। सूद के दो इकसाम हैं। एक जाती जरूरियात के तहत जरूरत के वक़्त, या फिर तजारती सूद जब कोई शख्स अपनी तजारत किसी माल किसी जब कोई शख्स अपनी तजारत के लिए किसी से माल बतौर कर्ज ले। तो ये दो किस्म में होता है, ठीक है। इस्लाम में दोनों किस्में ही मना है, ना आप जाती कोई फायदा ले सकते हो ना ही फाइनेंशियली। तो कर्ज देने वाले को तोहफा भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मैं किसी से कर्ज ले रही हूं तो मैं तंगदस्त थी तो मैंने कर्ज लिया, इन रिटर्न मैं उसको गिफ्ट करूं कुछ के एक्स्ट्रा कुछ भी, तो वो भी अगले बंदे के लिए सूद है। हदीस का मफहूम आता है बाकायदा, जिस शख्स को तुमने कर्ज दिया उसका हदिया भी कबूल ना करो, क्योंकि हो सकता है वो खुश करने के लिए दे रहा हो, उससे तोहफे की असल स्पिरिट जो है भी वो मजरू हो जाती है। क्योंकि हमें भी जब हम लोग गिफ्ट दे रहे होते हैं ना, कि कोई ना कोई हमारे पीछे बैक एंड नियत होती है। तो किसी से हमने मान लिया होता है ना, चलो अगला बंदा खुश हो जाए, वो नेक्स्ट टाइम भी जरूरत पड़े तो वो दे दिया करे, इस नियत से भी उसको गिफ्ट दे तो वो गलत है। क्या मतलब ये कह दे कि अच्छा यार मैंने इसको एक तो कर्ज वापस करे साथ गिफ्ट दे दे, तो कि नेक्स्ट कभी मुझे जरूरत पड़े तो मैं दोबारा से मांग सकूं। नो, जो एक दफा कर्ज था वो आपने वापस कर दिया, दैट्स इट, इसके अलावा कोई एडिशनल गिफ्ट नहीं दे सकते। और सो जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बना हुआ था। सबसे पहले सूरह आल इमरान की आयत में नाज़िल हुआ था, ए ईमान वालो, दुगना चुगना सूद ना खाओ। यानी कि जो डबल में होता है ना, खान जो भी अमाउंट होती है वो नहीं खाओ। फिर उसके बाद सूरह रकूम में आयत नंबर 39 में आया था, जो रकम तुम सूद पर देते हो ताकि लोगों के माल बढ़ जाए, तो इससे अल्लाह ताला के हाँ नहीं बढ़ता ऐसा माल। कि लोगों से अगर हम लोग सूद किसी पर आ गया, ने कर्ज लिया था और वो ऑफ कोर्स सूद दे के साथ वापस कर रहा है, और उसके पास माल ज्यादा हो रहा है, तो अल्लाह ताला के लिए वो माल कोई ज्यादा नहीं हो रहा। फिर तीसरे नंबर ये है सूरह बकरा की, कि बिल्कुल यहाँ पर जो है फिर वो मना कर दिया इस तरह से कि जो ऐसा करे वो बिल्कुल यहाँ पे हराम करार दिया, इसने हराम कर दिया सूद को, रिबा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ पर पूरा जो सूद है वो अ, मना किया गया था। इवन के एक जगह ये भी आता है कि जिसने सूद किया उसने अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग, अल्लाह ने जंग किया। वो भी कमिंग आयत में आएगा। तो इसके बाद एक फौजदारी जुर्म बन गया, और अरब के सूदखोर खुद कबीलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल के जरिए आगाह फरमाया कि अगर वो बाज ना आए तो जंग की जाएगी उनके खिलाफ, सूद वालों के लिए। तो इस्लाम में दौलत का मकसद यूं है कि एक हाथ में ना रह जाए, बल्कि पूरे मुआशरे में सर्कुलेट हो, जिस तरह से खून पूरे जिस्म में सर्कुलेट होता है।
अगर एक जगह रुक जाए तो जमा होकर बीमारी पैदा होगी ना। तो ऐसे ही सूद खाना ऐसे है कि खाने से इसलिए तशबीह दी गई है क्योंकि वो इस माल पर मुकम सूद खाने से इसलिए अच्छा, सूद को हम लोग खाने का यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? तो खाने से इसलिए तशबीह दी गई क्योंकि वो उस माल पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेते हैं जो कि उसका नहीं। और ये एक खुद गर्जी की तरफ इशारा है। इसकी शिद्दत को वाज़िया करने के लिए कहा गया सूद खाना। सूद के साथ खाने का लफ्ज यूज हुआ। तो जरूरतमंद इंसान से फायदा उठाकर उसका माल भी खींचने लगता है क्योंकि वो जायद माल उससे ले रहा होता है। फिर जरूरतमंद और हो जाता है और दौलतमंद मजीद दौलतमंद होता चला जाता है। इससे मुआशरे में नाहमवारी भी होती है। बल्कि सदकात, इसलिए जो है यहाँ पर सदकात को प्रमोट किया जाता है ताकि खुशगवारी का माहौल हो, खरीदारी भी बढ़े। क्योंकि अगर एक ही तरफ सिर्फ माल रहेगा तो फिर खरीदेगा कौन? ये बेचने के लिए माल का कैसे वो बनाए? सूद में खरीदारी बहुत असरअंदाज होती है। सिर्फ अमीर लोग ही खरीदारी कर सकते हैं। इससे बिजनेस के अलावा दिलों पर भी असर होता है। इंसान खौफ और गम उसका बढ़ने लगता है। फिर तजारत और डाके कत्लो गारत और डाके ज्यादा होने लगते हैं। और शैतान ने यहाँ पर कहा, शैतान ने खप्ते बना दिया छूकर, यानी शैतान ने पागल कर दिया। मिसाल के तौर पर वो लोग जिन पर असर करते हैं उनकी अकल काम नहीं करती। इसी तरह सूदखोर माल को दीवाना इन शख्स अपने होश खो बैठता है, फिर किसी बात की हकीकत नहीं समझ पाता। इस तरह से शैतान जो है उसको खप्ती बना देते हैं, पागल बना देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं। सूदखोर लोग क्यामत के दिन दीवाने और मजनून की तरह उठाए जाएंगे। ये हदीस का मफहूम आता है ये। जिस तरह दुनिया में होश नहीं थी तजारत और सूद के फर्क का और माल की मोहब्बत का, इस तरह क्यामत के दिन भी नहीं होश होगी और इस कदर सजा मिलेगी। कई रिवायत से ये पता चलता है कि इंसान दुनिया में जिस गुनाह में मुलविस होगा, क्यामत के दिन उसकी सजा भी उसकी तरह होगी। गुनाह और सजा में मुमासलत होती, गुनाह और सजा में भी मुमासलत है। जैसे अ, किसी भी चीज की सच्चाई के लिए काफी है कि खालिक के कायनात की कही हुई है उस पर इंसान कोई हुज्जत ना करे। जैसे यहाँ पे एक्सक्यूजेस किए जाते हैं कि ये तो हलाल है, हम तो इसमें एफर्ट्स कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें सूद क्या होता है कि आप इतने पैसे देकर इस कंपनी को ज्वाइन करें, फिर आपको उसमें अ, आपने फिर आगे से नेक्स्ट लोगों को ज्वाइन करवानी है। आपके रेफरेंस से जितने लोग आएंगे उसका आपको प्रॉफिट होगा। फिर उससे नेक्स्ट आगे लोग जितने आएंगे उसका आपको प्रॉफिट होगा। और वो फिर आगे जिन जिनको रेफर करते जाएंगे उसका प्रॉफिट भी आपको होता चला जाएगा। तो ये एक बैठे बैठाए आपको फिक्स रेशियो मिलती जा रही है। मगर उसमें ना मेहनत पता किसे कहते हैं वो लोग? क्या हम किसी को काउंसल कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, तो ये हमारी मेहनत है। लिटरली। वो तो एक इंसान अगर बेच रहा है ना कुछ चीज, बोल के भी उसने बेचनी है और उसके पास फिजिकली कुछ चीज भी होगी बेचने के लिए, तो उसमें भी अगर बोल चाल में उसने कोई गलत अल्फाज अदा किए ना, कुछ झूठ बोला, तो वो भी उसके लिए गुनाह है। उसका तजारत हराम हो जाती है। वो लोगों में से शुमार हो जाएगा जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन नहीं नहीं देखेगा, जिसने झूठ बोल के अपना माल फरोख्त बेचा। तो जो हराम है, जो सूद है, इसको ना ऐसे समझ ले कि जो फिक्स अमाउंट आपको आनी है और आपको उसमें लॉस नहीं है किसी भी लिहाज से। मतलब उसका आपको लाइफ जैसे बिजनेस भी होता है ना, तो उसमें भी होता है कि आपको रिस्क रहता है। जॉब भी होती है ना, उसमें भी आपको होता है कि अगर आपने काम नहीं किया आपको पे नहीं मिलेगी। और आप वहां पे काम अगर कंसल्टेशन का भी कर रहे होते हो ना, तो उसमें भी आपका कोई ना कोई मकसद होता है, किसी चीज कोई प्रोडक्टिव चीज के साथ आप जोड़ रहे होते हैं। या कोई
सर्विस सेल कर रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ सूद, ये जैसे इंश्योरेंस वगैरह आ जाती है, फिर नेटवर्क पायरामिड मार्केटिंग आ जाती है। तो ये सिस्टम जो है फिर वो सूद में आ चुके हैं आज बहुत ज्यादा। इवन अगर आज के दौर में अगर आप किसी को रिच देखते हो ना, तो दे मस्ट, मैं 50% आई एम श्योर कि वो पायरामिड मार्केटिंग का शिकार होते हैं। और जो चीज नहीं ठीक ना, आप अल्लाह ताला की तरफ से सबके अंदर जमीर होता है, वो आप एक दफा झंझोड़ता जरूर है, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने माल को आजमाइश पे बनाया है। फिर उस माल को देखते हुए इंसान बहुत सी हुज्जतबाजियां करने लगता है, बहुत से झूठे फतवे इकट्ठे करना लगता है। पाकिस्तान में तो बहुत से जो है वो अजीबो गरीब फतवे लेकर अपलोड किए गए होते हैं। तो वो इस कदर फिर अपने बिजनेस में यूटिलाइज करते हैं, और पता भी नहीं। अच्छा, मैं एक दफा बैंक गई थी और उस वो ना मेरा सेविंग अकाउंट था। आई जस्ट सेड कि मेरे जो है ना अकाउंट में पैसे एडिशनल ऐड हो रहे हैं, तो काइंडली वो चीज मेरी बंद कर दे, मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं आप सूद की वजह से बंद करिए। मैंने कहा जी। तो सेड कि ये सूद नहीं, उन्होंने कोई और नाम दिया। मेरे जहन से बिल्कुल स्किप हो गया। मैं कि घर आके उसको सर्च करूंगी। कहते हैं ये वो चीज़ है और ये फतवा दिया हुआ है उस गाइड मौलवी का, तो वो चीज़ हलाल है। और इसमें आपको कौन सा डेली मिलता है, ये तो आपको कभी कभी मिलता है। तो सूद तो वो होता है जो डेली मिलता है। जो चीज मुझे मेरी मेहनत के बगैर मिल रही है, और मुझे नहीं पता कि अगर वो मेरी, क्योंकि बैंक में तो ऐसा ही होता है, आपके जो पैसे होते हैं ना, ये इन्वेस्ट वगैरह करते होते हैं, और फिर उस पे उनको जो प्रॉफिट बैंक में, यही एक एक मुझे पता है कि ये सिनेरियो तो ऐसा है कि वो ना इस तरह से उनकी अर्निंग होती है। हमारे वहां पे पैसे जमा करवाने का उनको क्या फायदा कैसे होता है, वो ये होता है। और फिर जो आगे से वो अपने कस्टमर्स को भी जो एच दे रहे होते हैं, फायदा दे रहे होते हैं, या एक्स्ट्रा पैसे हमें दे रहे होते हैं, वो हमारी खाला का बेटा तो नहीं है जो खाला, मामू तो नहीं है वो जो हमें पैसे देंगे। तो ऐसा होता है कि वो उनको प्रॉफिट हो रहा होता है, तो उसका वो कुछ परसेंट हमारे अकाउंट में ऐड करते हैं। बट इट इज नॉट गुड। आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, आपके पास डिटेल होनी चाहिए। वो कहाँ पर इन्वेस्ट करके कहाँ से प्रॉफिट ला रहे हैं, किसी हराम काम में इस्तेमाल हो रहा है। माइट भी हराम काम इन दैट सेंस कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया जहाँ पे हराम डीलिंग होती है, या यहाँ वहाँ पे हराम म्यूजिक चलाया जाता है, तो या हराम फूड है वहाँ पे कोई, तो किसी भी तरह से हराम लिंक हो जाए, तो वो फिर आपको तो पता ही नहीं है कि वो पैसे कहाँ से इन्वेस्ट हो रहा है। आप तो हम लोग तो बड़े यार, मैंने मुझे थोड़ी ना पता कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें, वो जहाँ मर्जी करें। नहीं, जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो यू हैव टू नो कि आपको वो प्रॉफिट कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है। तजारत में जो है ना पैसे के साथ मेहनत भी होती है, मगर सूद में सिर्फ पैसे की तजारत होती है और रिस्क भी नहीं होता। और जबकि तजारत में सिर्फ रिस्क भी होता है। तजारत में नफे की मकदार फिक्स नहीं होती, जबकि सूद में फिक्स होती है। तजारत में जो है वो एक दफा मामला होता है तो खत्म हो, तजारत में एक दफा मामला खत्म होता है तो खत्म, मगर सूद में मुनाफा मिलता रहता है। वो ईयरली वीकली वो कभी खत्म नहीं होता। एक दफा आपने उसमें स्टेप रख लिया तो हर वो सिस्टम को एनालाइज करें कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक दफा आपने स्टेप रख लिया और आपके रुकने से वो नहीं रुका, नहीं रुकता, तो इट मीन्स कि वो आपके लिए तजारत नहीं है, वो सूद है। तजारत में जितने की चीज होती है उतने के ली जाती है, बल जबकि सूद में एक्स्ट्रा माल लेते हैं। तजारत में इंसान जहन, सोच, वक्त और एफर्ट लगती है, जबकि सूद में नहीं। तजारत एक प्रोडक्टिव काम है, मेहनत करता है, सेहतमंद अमल में मशगूल रहता है, जबकि सूद में घर बैठा रहता है। मर्द एक वक्फे के बाद घर आए ना, तो खुशगवारी का माहौल बनता है। अगर मर्द घर रहे तो सबके मामले में बोलकर माहौल खराब करता है। और ये लिटरली मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया था। हमारे बाबा ना जो जिनके भी बाबा आउट ऑफ सिटी होते हैं या आउट ऑफ कंट्री होते हैं, वो जब आफ्टर सम डेज, आफ्टर वीक्स और मंथ्स जब घर आते हैं ना, मैं उनका
माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है, स्पेशली जब वो सारा दिन घर पे होते हैं, वो हर मामला में बोल रहे होते हैं। तो अक्सर मेरे मामा वो कहती थी मैं भी सारा दिन ऐसे गुजारती हूँ, खामोश रहा करे। तो ये अल्लाह ताला ने ना हर एक को उसकी क्वालिटी, उसकी फितरत के मुताबिक ड्यूटीज दी हुई हैं। तो ऐसे ही है कि एक एक मर्द घर बैठ के बैठा रहा है, उसको पैसे आई जा रहे हैं, कोई मेहनत नहीं, कोई जहनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, बस वो बैठा हुआ उसको पैसे आ रहे हैं। बहुत से मैंने देखे इवन कि एक वो, अब मुझे अब याद आ रहा है कि जैसे ना मेरे लिए जैसे लग रहा है मेरी आई चल रही है वो, एक थी मीटिंग में और ही सेड कि उनका एक जो मेन बंदा था वो उसको महीने का 13 लाख बैठे बैठे आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बस एक साल शुरू में 2 से 3 साल मेहनत कर ली, अब उनको बैठे बैठे आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता। एक इंसान बिजनेसमैन भी होता है ना, उसने अपनी जो बिल्डिंग खड़ी की है, मैनेजमेंट खड़ी की है, वो बेशक जितना बढ़ जा आगे पहुंचे, उसके नीचे मैनेजर होता है, और वो मैनेजर से पूछ रहा होता है कि मेरा काम कैसे चल रहा है, और वो डायरेक्ट सारा उस पर छोड़ भी नहीं सकता। वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे जा सकता है, लेकिन वो अपने बिजनेस से बिल्कुल बैक नहीं हो सकता। तो जितने हमारे पास ये आते हैं बिल गेट्स और मतलब जो हमारे दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा जाल है जिसने सबको पैसे के लालच में, एम्पावरमेंट के लालच में, इंडिपेंडेंसी के लालच में, मुस्तकिल पैसे की बहाव के लालच में ये बिजनेस किया जा रहा है। और सूद का हराम होने के लिए ना 7 आयात, 40 अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। और इजमाय उम्मत में भी ये साबित है कि सूद हलाल नहीं कहा गया। इवन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की से रवायत है, नबी पर आखिरी चीज रिबवा की आयत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना, बस छोड़ दो तुम सूद को और हर चीज को जिसमें सूद का शक व शुबा भी हो। इवन जहाँ पर शक भी आ गया ना, फतवे वहीं पर ले जाते हैं ना जहाँ पे शक आ जाता है। तो जहाँ पे शक भी आ गया, वहां पर भी सूद को छोड़ दो। जिसका मफहूम है 4 आदमी ऐसे हैं कि उनके बारे में अल्लाह ताला ने अपने आप पर लाजिम कर लिया कि इनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा और जन्नत की नेमत न चखने देगा। सबसे पहले शराब का आदी, सेकंड सूद खाने वाला, तीसरा यतीम का माल नाहक खाने वाला, चौथा वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। इन 4 लोगों पर अल्लाह ताला ने खुद पर लाजिम कर लिया कि वो इनको जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या उमा खालिदीन फीहा, हम फीहा खालिदून, सॉरी, हम फीहा खालिदून, हमेशा क्यों रहेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार कर दिया और ये कुफर है। अल्लाह ताला ने हराम करार कर दिया और ये इसे हलाल समझते रहे। और बाहम रजामंदी से हराम काम जो है ना हलाल नहीं हो जाता। अल्लाह ताला की कानून में कोई मेजोरिटी एज अथॉरिटी का लफ्ज नहीं होता। जो अल्लाह ताला ने हराम कह दिया, दैट्स इट, उस पे हराम की सील लग गई है। इसकी तफसीर काफी लंबी होगी, बट ये जरूरी भी था क्योंकि मैंने आजकल देखा है बहुत सारी कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो चुकी है। बट बस इतना जरूर ख्याल रखना है कि जहां पर आपको नुकसान की का डर नहीं है, या आपको लगे कि आपकी कभी यहाँ पर इनकम रुक नहीं सकती, आप अगर काम किए बगैर या आपकी लाइफ टाइम आपकी इनकम, क्योंकि 1 मंथ 1 वीक होता है वो अलग बात होती है कि आप उस टाइम मैनेजर किसी को रख लेते हो। मगर अगर पूरी लाइफ ही, क्योंकि इतना अच्छा मैनेजर भी नहीं होता, वो भी पीछे से 2 नंबरी करना शुरू कर देता होता है। आपको चेक एंड बैलेंस रखना होता है। तो पूरी लाइफ के लिए आप किस ब्लाइंड होकर बैठ जाओ घर पे और ऐश करो, खाओ पिए, कि आपको बिजनेस की फिक्र ही नहीं है, आपको डर ही नहीं है इस बात का कि मुझे पैसे आना रुक भी सकते हैं, या मुझे एफर्ट्स करनी है। कोई प्रोडक्ट ही हो सकता है कि आपने उसमें प्रोडक्ट सेल करवानी है, तो आपका वो फ्लो जाने के लिए आपकी मेहनत दरकार है।
ٹھیک ہے، اب تلاوت چلاتی ہوں. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير بالکل آواز نہیں آ رہی مجھے. فإن الله به ہیلو، ہاں آپ کو نہیں آواز آ رہی؟ تلاوت کی بالکل آواز نہیں مجھے آ رہی. اوہ، تو میں نا اب لیو کری، ایکچولی میں باہر آئی ہوئی ہوں، تو پھر بعد میں سن لوں گی. ٹھیک ہے، اوکے اوکے ٹھیک ہے. اوکے، جزاک اللہ. اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.